Let's get you details of UP Chief Minister Yogi Adityanath's attack on Aurangzeb backers. Days after the riots in Nagpur, UP Chief Minister Yogi Adityanath has reiterated his stand on those backing Aurangzeb, saying anyone glorifying Aurangzeb is a traitor. According to him, New India will not tolerate those glorifying such traitors. Listen in to what the UP Chief Minister said. भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। Let's bring in Samarth Srivastava for more details. So on the statement that's come in from Chief Minister Yogi Adityanath, Samarth, and clearly it's dominated headlines in Uttar Pradesh too, the debate over Aurangzeb, over this Mughal emperor. Well, exactly, Akshita. CM Yogi Adityanath has climbed down heavily on the Aurangzeb thing. The controversy which has erupted since Abu Azmi, Samajwadi Party leader, praised Abu Azmi's tenure. So that's what CM Yogi Adityanath is referring to. We cannot glorify those who invaded India in the times when it was called the Son Chiraiya. So that's what CM Yogi Adityanath is referring to, those invaders who invaded India, and Aurangzeb was one of them, and that's why we must not glorify them, because these invaders not just looted India but also in a way did a lot of crime at that particular position when the minorities, when the Hindus especially were targeted during the tenure of Aurangzeb or some other leaders which currently are being glorified. So that's what the message from CM Yogi Adityanath. While the opposition is taking on the BJP, saying that BJP has nothing to do with the present scenario, the problems of farmers, of youth unemployment, and they are talking about the history, and that's why trying to deviate the public from the original issues, from the major issues. So that's what the claims from the opposition. While CM Yogi Adityanath is stressing on the point, though it's not the first time when CM Yogi Adityanath has spoken on the issue of Aurangzeb, because another controversy has erupted in the form of Major Mela, which is happening in Bahraich. Okay, but Samaj, just stay with me. Let me bring in now Fakhrul Hasan Chand of the Samajwadi Party on this broadcast. Hasan जी, आपको क्या कहना है इसके बारे में? योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि जो भी औरंगजेब को आधार करते हैं या आधार देते हैं वो गद्दार है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है, क्योंकि लोग इतिहास की बात कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मौजूदा विधायक योगेश वर्मा, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो सदन नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, उसमें आरक्षण का लाभ जो पिछड़ों को मिलना चाहिए था नहीं मिलता, माननीय उच्च न्यायालय पूरी सूची निरस्त कर देता है। आज जब उत्तर प्रदेश में एक दलित वो घोड़ी पे चढ़ के बारात लेके जा रहा होता तो उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं और कौन लोग व्यवहार करते हैं, ये भी सब पूरा देश जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज गरीबी से, महंगाई से, मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए इतिहास की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है। ना औरंगजेब के समय पे संविधान था, आज भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को नहीं मानना चाहती है, वो इतिहास की बात करना चाहती है। वर्तमान उनके सामने है, वर्तमान में जनता ने उनको मौका दिया है जनता के लिए काम करने का। लेकिन इस मुद्दे पर हासन जी, इस मुद्दे पर आपके राय क्या है औरंगजेब के बारे में? नहीं, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेलने का कोई शौक नहीं है। हमारी पिच बेरोजगारी की, महंगाई और किसान और मजदूर की है। हमारे मुद्दे उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई बदहाल कानून व्यवस्था पे है, जहां एक अधिकारी का घर जला दिया जाता है। आपके पार्टी से ही अबू आजमी जी ने औरंगजेब के बारे में बात किया था? नहीं, औरंगजेब के बारे में जब बात की थी तो उसी के बाद उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया था और माफी मांग ली थी। उस बात को वहाँ खत्म नहीं किया गया, उस बात को बढ़ाया गया। बात आगे बढ़े क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की भी कानून व्यवस्था बद से बदतर है। वहाँ किसानों को
जो फसल का मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, गरीबी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है, एक अधिकारी का घर जला दिया जाता है, सहारनपुर में पुलिस वालों के साथ क्या व्यवहार होता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, रोज बलात्कार हो रहे, रोज हत्या हो रही है, रोज लूट हो रही है। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे हटे, इसलिए इतिहास की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है, क्यों बाबा साहब की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बाबा साहब के संविधान की बात नहीं कर रहे कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, सरकार ने जो संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ है वो पिछड़े दलितों को नहीं मिल रहा है, क्यों आप किसानों के खिलाफ हैं, उनकी आय दुगनी करने का वादा किया था, उन वादों पे क्या हुआ, इसलिए ठीक है, okay, we've got the point. The Samajwadi Party saying this is a distraction tactic. Thank you, Fakhrul Hasan, for joining us with your view on this. The Samajwadi Party saying we won't respond to this because we believe there are bigger issues to talk about in Uttar Pradesh.